get the ready-made uplas, because those people they used to say that uplas are a necessity of life, but they find it very dirty to make it. So we have developed a machine through which uplas can be made. We have also developed a machine, washing machine, that is fitless cum washing machine, where they can cycle and the clothes will be washed rather than using the electricity. Maybe we will be demonstrating that machine today to you in the afternoon session. So like these activities are done so that we are able to relate with the society. So the university is trying to relate with the society, and the message we want to flow through this symposium is that all the universities should be relating themselves with the society. Because if the university develops, society should develop alongside. If these are not two disjoint sets, these are common sets, they should be working together. So this is the purpose of the seminar. This is the purpose of the symposium. Welcome all of you once again to this symposium. Thank you very much. Encyclopedia of Hinduism, which has been released, sponsored by Parmarth Niketan, Indian Heritage Research Foundation, USA, that has recently been published in 2012 January. He is the chief editor of the Sahitya Academy sponsored Encyclopedia of Indian Poetics, a UNESCO project that is under publication. He is a nominated visiting professor at the Irish Academy of Cultural Heritages, University of Ulster, United Kingdom, and nominated member advisory board for India Studies, Trinity College, Dublin. He was nominated Birla Foundation Fellow in 2007 and UGC Emeritus Fellow at JNU, his parent university, in 2007 to 2009. He is advisor to CBSE, New Delhi, for English since 2000. He has been nominated by Punjabi University, Patiala, as a fellow for the SS Noor Fellowship for 2011-2013. Dr. Kapil Kapoor has been a nominated member of the governing body of Indian Institute of Advanced Studies, Shimla, and the governing body of the Indian Council of Philosophical Research, a member of the monitoring and planning committee of Central University of Higher Tibetan Studies, Sarnath. His teaching and research interests include literary and linguistic theories, both Indian and Western, philosophy of language, 19th century British life, literature and thought, and Indian intellectual traditions. His two books, Dimensions of Panini Grammar, Indian Grammatical System, and Text and Interpretation, The Indian Tradition. Both the books were published in 2005. Indian Knowledge Systems, 2 volumes, edited by him, was also published in 2005. His book, Rati Bhakti, which is in Hindi, Rati Bhakti in India's Narrative Traditions, the book is in Hindi. He wrote this book as a Birla Foundation Fellow in 2007 and 2008. His book, Abhinav Gut, Manuscripts and Irish Indian Anthology, with Professors Welch and Mathuana of University of Ulster as co-editors, are under publication. He has delivered lectures by invitation in several universities in India, including IITs, and published around 90 articles in areas of Indian and Western philosophy. In 2008, he lectured in the House of Lords, UK, on democracy and polity, and from 2005 to 2009, he delivered invited lectures each year in the Irish Academy of Cultural Heritages, University of Ulster, UK. The most important recent contribution, on 21st of this month, Sanchi University of Buddhist and Indic Studies was inaugurated at Sanchi, Madhya Pradesh by President of Sri Lanka and Prime Minister of Bhutan. And Professor Kapil Kapoor is the key person in writing and constructing the whole preamble and constitution and act of this university. So that's a wonderful contribution by Professor Kapil Kapoor. Right now he is visiting professor and advisor in VPS Women's University, Kanpur, Kala. May I request Professor Kapoor to please introduce the theme of today's symposium. Ji, Mr. Madam, BBC Madam, our learned and distinguished guests, Ji. मैं धन्यवाद देता हूँ वीसी मैडम का कि उन्होंने मुझे इतने बड़ी व्यवस्था और ऐसे जो विशिष्ट
इस कार्य में विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनके बीच में इस सब्जेक्ट सामाजिक दायित्व का संवर्धन, सामाजिक दायित्व को बढ़ावा देना और सामुदायिक भागीदारी जो उच्च शिक्षा में होनी चाहिए, समुदाय की भागीदारी, उसको सशक्त करना। सशक्त करना से लगता है कि अभी आजकल समुदाय की भागीदारी है। मैं समझता हूँ कि समुदाय की भागीदारी है ही नहीं, है ही नहीं। तो इसको सशक्त नहीं, समुदाय की भागीदारी को इसमें उच्च शिक्षा में लाने की बड़ी आवश्यकता है। व्यापार की भागीदारी बहुत है उच्च शिक्षा में। नई नई प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन आप बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। पर उच्च शिक्षा का कोई सामाजिक दायित्व है, लोगों की तरफ कोई दायित्व है, जिम्मेदारी है, या उच्च शिक्षा मूल रूप से लोगों की मेहनत से ही जुड़ी हुई होनी चाहिए और उनको लोक जीवन को, उच्च शिक्षा का लोक जीवन को कुछ लाभ मिलना चाहिए। अगर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इस इलाके में है तो इसके चारों तरफ जो हमारे भाई बहन और बच्चे, बेटे बेटियां रहते हैं, उनको इसमें आए बिना, यानी कि वो जब पढ़ने आएंगे तो कुछ लाभ लेंगे, इसमें आए बिना उनको इस विश्वविद्यालय का कोई ना कोई लाभ उनके जीवन में, उनके रहने सहने के ढंग में या उनकी सोच में उसका कोई लाभ होना चाहिए। ये होता नहीं है, सिर्फ यहाँ नहीं, सारी दुनिया में। अब जो विश्वविद्यालय, वैसे कहने को तो विश्वविद्यालय हैं, आगे विश्वविद्यालय का अर्थ होता था कि वो विद्यालय जहाँ ज्ञान जो है, जहाँ जो ज्ञान का सृजन होता है, जो ज्ञान बनाया जाता है, वो ज्ञान सारे विश्व को लाभ देगा। आजकल विश्वविद्यालय का मतलब ये है कि उस विश्वविद्यालय में जो लोग काम करते हैं, जो बड़े लोग काम करते हैं, वो पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। ये आजकल का विश्वविद्यालय, उनको टिकट मिल जाती है, एयर टिकट, और वो दुनिया घूमते हैं। तो इसलिए हमने मैडम से जब पिछले 2 साल पहले, मैडम थोड़ी मॉडेस्ट हैं, इनको ये कहना चाहिए था कि ये आइडिया ओरिजिनेट इनसे हुआ और इन्होंने ये सोचा, और जब ये सोचा तो कहीं भी इस तरह का प्रत्यक्ष रूप से समाज और विश्वविद्यालय का अंतर संबंध इसके बारे में प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी नहीं सोचा गया था। यहाँ जब ये इनिशिएटिव इन्होंने लिया शुरू किया तो उसके 6 महीने बाद डबलिन में, ट्रिनिटी डबलिन में एक सेमिनार हुआ। उसका सब्जेक्ट ही ये था, सोसाइटी यूनिवर्सिटी इंटरफेस। फिर ब्रिटिश काउंसिल ने पकड़ लिया और उसके बाद वो फिर बढ़ता अच्छी बात है। हम पर है क्या कि काम शुरू हो जाता है पर वो नाम के स्तर पर ही रह जाता है। काम शुरू हो गया, नाम भी बन गया, उसके बाद क्योंकि कई लोग, पवन जी, इस देश में हम कुछ लोकोक्तियां सुनी हुई हैं कि इस देश में जो भी होता है वो इसलिए होता है कि जिसके लिए वो होता है उसके लिए नहीं होता। ये बड़ी लंबी लोकोक्ति है पर काफी अर्थपूर्ण लोकोक्ति है। मैं दोबारा बोलता हूँ, सोचिए, इस देश में जो होता है वो इसलिए होता है कि जिसके लिए वो होता है उसके लिए नहीं होता। और कई बार इस देश में बड़े बड़े नामों वाले कदम उठाए जाते हैं
और उसके पीछे जो लोकोक्ति है, क्योंकि पवन जी सरकार का भाग है ना। इसी तरह हमने मुलायम सिंह जी से भी खूब चर्चा की थी एक बार कि आम जनता क्या सोचती है। ये सोचती है कि जब भी इस देश में कुछ बनता है तो वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए बनता है, ये नहीं कि समाज को लाभ हो। इसलिए हमें बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, चेष्टा करनी पड़ेगी कि जो हमने इस यूनिवर्सिटी में शुरू किया उसको हम तथ्य के रूप में उसको करें। और हम भी, महात्मा बुद्ध का एक नाम है तथागत, तथागता, उस रास्ते पे गया कि हम भी फिर उस रास्ते पे चलें जो हम अंग्रेजी में दूसरों को दिखाते हैं। ये अंग्रेजी में दिखाना भी एक स्टेटमेंट होती है कि हम अंग्रेजी में बात करके, अंग्रेजी में करके हम सोचते हैं कि हम बुद्धिजीवी बन जाते हैं। तो पहली बात ये है कि कुछ बातें कहूँगा, कहने को बहुत कुछ है। कभी मैं ज़्यादा बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, मैं ज़्यादा बच्चों से बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि हमारी उम्र के लोग पक जाते हैं, है ना, उनके दिमाग भी पक जाते हैं। अगर उनको छेड़ो तो वो दिमाग टूट जाते हैं, बदलते नहीं, है ना। वो कहते हैं ना, सोने का घड़ा, उसको आप उसकी रूप बदल सकते हो पर वो टूटेगा नहीं। मट्टी का घड़ा रूप नहीं रूप बदलने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा। तो जो बच्चे होते हैं वो अभी वो सोने का घड़ा है, वो अपने विचार, उनका सोच जो है वो बदल सकते हैं। तो कुछ बातें जरा आपको बच्चों सोचनी चाहिए जो हम कहेंगे, थोड़ी थोड़ी, जरूरी नहीं कि सारी इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो या सारी नहीं हो। नया कुछ नहीं होता। हम भी जो बोलते हैं, हम 50, 52, 53 साल से पढ़ रहे हैं, कई कुछ पढ़ रहे हैं, तो हमें पता भी नहीं कि कौन सा विचार कहाँ से आया। हाँ, ये जरूर है, जब पहली बार हमें बात समझ आती है तो हम सोचते हैं कि ये हमने ही बनाया है, जबकि वो समझ हमें पहली बार आया है। पर इसलिए नया कुछ नहीं कह रहा मैं, ना ही वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, पर कुछ बातें थोड़ा सोचनी चाहिए हमें रह के कि 200 यूनिवर्सिटियों के नाम निकले हैं दुनिया की, उनमें एक भी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी नहीं है। 200 यूनिवर्सिटियां दुनिया की जो सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें हमारे देश की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। क्यों? हम तो इतनी अंग्रेजी बोलते हैं, हमें बड़ा प्राइड है कि हम चाइना से भी ज्यादा अंग्रेजी जानते हैं, पर चाइना की 11 यूनिवर्सिटियां हैं उस लिस्ट में, हमारी एक भी नहीं है। और सर पॉल जो इंग्लैंड में लॉर्ड हैं और जो 2 इंग्लैंड की यूनिवर्सिटियों के चांसलर हैं, उनकी एक कल स्टेटमेंट थी। उनको बड़ा अफसोस हुआ कि हिंदुस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी 200 में नहीं है। और उन्होंने कहा उसकी वजह ये है, ये जो कम्युनिटी एंगेजमेंट, सामुदायिक भागीदारी नहीं है हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में। हिंदुस्तान के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें सामुदायिक भागीदारी नहीं है। और उन्होंने नाम कौन सी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी का लिया? नालंदा का। अब नालंदा और तक्षशिला, विक्रमशिला, है ना, वल्लभी, 12 यूनिवर्सिटियां हिंदुस्तान में थी, 11, जबकि दुनिया में कहीं भी कॉलेज भी नहीं थे, कॉलेज भी नहीं थे। ईसा से 7वीं शताब्दी पूर्व तक्षशिला की यूनिवर्सिटी थी, सारी दुनिया के लोग आते थे और विद्वान आते थे, यूनान से, चाइना से। और नालंदा 13वीं शताब्दी तक उसी तरह इंटरनेशनल, जिसको आजकल हम कहते हैं विश्वविद्यालय, विश्व का विद्यालय, तो वो विश्व, उनको अगर आज की गिनने लगेंगे तो वो 11 की 11 यूनिवर्सिटियां 200 में आ जाएंगी। पर आज की आपकी 424 यूनिवर्सिटी है इस देश में, 424, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। कई कारण हैं। तो
क्या करना, क्या वजह है? सामुदायिक भागीदारी नहीं है। सामुदायिक भागीदारी के दो अर्थ हैं कि यूनिवर्सिटी समुदाय में, विश्वविद्यालय समुदाय में भागीदारी नहीं करता। मतलब विश्वविद्यालय समाज की जो समस्याएं हैं, समाज में जो हो रहा है, मोटे तौर पे जैसे कि हमारे गांव में जो जवान लड़के हैं उनके लिए कोई काम नहीं है और वो शहरों को जा रहे हैं। गांव में जो आगे कृषि में बहुत काफी लेबर मजदूरी लगती थी, मेहनत लगती थी, वो या तो मशीनों से या सस्ती लेबर बिहार से लाके उनके द्वारा हो रही है। तो हमारे जो लड़के हैं, फिर भी हमारा हरियाणा बड़ा लकी है। लकी इस सेंस में है कि किसी कारण से अब तक बड़ा सोच के कह रहा हूं, अब तक हमारे लड़के, हरियाणा के लड़के, ये जो अफीम और डोडे और चरस और शराब, इनसे ज्यादातर लड़के बचे हुए हैं अभी तक। पर अब जब उनकी जमीनें बिकी और बहुत पैसा आया है, उन अमीरों के लड़के, किसानों के लड़के बड़ी बड़ी गाड़ियों में दिल्ली जाके ये सब काम करते हैं। आने वाले 10 कॉमनवेल्थ गेम्स में 54 में से 28 मेडल हरियाणा के थे। और अगर हरियाणा स्वतंत्र कंट्री होता तो कॉमनवेल्थ में नंबर 4 पे होता और इंडिया नंबर 5 पे। अकेले इंडिया के 28 मेडल थे पर हरियाणा के। पर उसके क्या कारण? उसका कारण ये है कि अभी भी यहाँ की ग्रामीण जीवन जो है, वो जिसको प्राचीन शब्दावली में गोधन कहते हैं, गोधन के अराउंड आपका सारा जीवन बना हुआ है। भैंसे पाली जाती हैं, गाय पाली जाती हैं, और गोबर के अराउंड सारा जीवन चक्र, जीवनचर्या चलती है। गोबर से ही फ्यूल बनता है, गोबर से ही खाना पकता है, गोबर से ही खाद बनती है। और गाय भैंस से दूध, दही, मक्खन, वही वो जो सुशील कुमार को पूछा किसी ने कि सर आप क्या क्या खाते हो? तुमने कहा मैं तो कुछ ना खाता, मैं तो दूध दही खाता हूँ। उन्होंने कहा मीट भी अंडे नहीं खाते? फिर तो नाम तो नहीं खाते। ये जो पूरा जो एक्सलेंस है और जो जीवन शैली, इस जीवन शैली में कूड़ा करकट नहीं है। कूड़ा करकट गंदगी है, मैं निकलता हूँ देखता हूँ, गंदगी नहीं है। वो एक अव्यवस्था है, अव्यवस्था। कोई सोचता नहीं, और जिनको सोचना चाहिए, पंचायत वालों को, सरपंच जी को, मैं नाम नहीं लूंगा, हमने अपने कुछ लोगों को एक गांव में भेजा, क्योंकि हर गांव का जो पानी इस्तेमाल किया हुआ पानी है वो गांव से निकलता है। तो वो आमतौर पे गांव के 3 तरफ 3 पॉइंट्स होते हैं जिनमें वो इस्तेमाल किया हुआ पानी इकट्ठा होता है, वो गंदे होते हैं। एक पॉइंट साफ रखा जाता है, गांव ध्यान रखता है, जिसमें गाय भैंस स्नान करते हैं, नहाते हैं, वो एक साफ होता है। और अभी जब बारिश नहीं हुई थी तो बड़ी चिंता होती थी मुझे कि ये जो कितना बड़ा तालाब है ये खाली है अभी, पर आजकल खूब भरा हुआ है लबालब, और भैंस स्नान करते हैं उसमें, 3 में गंदा पानी जाता है। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा साधन होना चाहिए। ये जो फॉस्टरिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने लड़कियों को भेजा, टीचर को भेजा, और अपने वो जो हमारे मलिक जी काम करते हैं उनको भेजा कि पता लगाओ। ये पता लगा कि 21,000 रुपए में जमीन को खोद के उसमें मोटे मोटे पत्थर डाल के बाद में ऊपर जाली लगा दी जाए, वो पानी उसमें छोड़ा जाए, पानी फिर जमीन में समा जाएगा, और वो 3 जो उनमें जो गंदे होते हैं, गंदगी का कारण होते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। तो हमने भेजा, माफ करिएगा, वो भेजा कि सरपंच से मिलो। 3 बार या 4 बार मिले, 5वीं बार सरपंच जी ठेके पर मिले। सूरज सिंह जी आप बताओ क्या होगा? और उन्होंने कहा आप क्यों चिंता कर रहे हो, आपने क्या लेना देना है, हम तो देख ही रहे हैं, बस हो गया काम।
तो ये जो सामुदायिक भागीदारी, वाला आप देखिए, आपने देखा होगा बच्चों गांव में, जैसे ये आपको जो मैं बात में आऊँगा इसके ऊपर, कि जो हम आपको पढ़ाते हैं वो आपके जीवन के उलट है, और जो हम आपको पढ़ाते हैं वो आपको सुखी नहीं करेगा, दुखी करेगा। ये थोड़ा इसलिए आप जो पढ़ते हो क्योंकि वो छपा हुआ है किताबों में, तो उसको शाश्वत सत्य मानकर नहीं सोचना कि ये जो लिखा है ये तो ठीक ही है। हर चीज लिखी के ऊपर भी सोच के, इसको देख के कि क्या ये ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल राइट्स, अधिकार। घर में जाते हो तो माँ कहती है तुम्हें अपना फर्ज पता है, तेरा फर्ज क्या है, तू बड़ा बेटा है घर का, तेरी ड्यूटी क्या है। हमारा समाज धर्म केंद्रित है, धर्म का मतलब होता है धर्म का ड्यूटी, धर्म केंद्रित है, और हमें जो पढ़ाया जाता है वो अधिकार केंद्रित है। अगर हर आदमी अपना अधिकार मांगने लगे तो समाज में झगड़ा तो होगा, हो भी रहा है। और अगर हर आदमी अपना दायित्व समझे कि मुझे इनके लिए क्या करना है, होगा फिर भी वही, ज्यादा न्याय मिलेगा और सहिष्णुता, अंग्रेजी में हार्मनी कहते हैं, वो ज्यादा रहती है। पर ये विरोधाभास कि जिस समाज के हम अंग हैं उसकी सोच क्या है और जो हमको ये शिक्षा पढ़ाती है वो क्या है, इस विरोधाभास के कारण भी हमारे देश की काफी समस्याएं यंग लोगों, उनके जो दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, वो इस कारण से आ रहे हैं। तो ये जो हमारा यूनिवर्सिटियां, शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी का जो प्रश्न है, ये इसमें ये सब चीजें इन्वॉल्व हैं। कि आप देखा होगा आपने, हमारी लड़कियां गांव की, हमने देखा टोकरा उठा के एक सर्टेन टाइम पे यंग लड़कियां गोबर लेके एक जगह जाके गोबर डालती हैं। आफ्टरनून में उम्र की बड़ी लेडीज जाके वहां पाथियां बनाती हैं। भैंसों को लड़के ले जाके नहलाने के लिए, खेतों पे ज्यादा उस वक्त खेतों में आदमी पहली बार उठ के काम करते हैं, साथ में लेडीज भी हेल्प करती हैं। एक चक्र है उसमें, हर एक का हिस्सा बटा हुआ है, हर एक का दायित्व बटा हुआ है गांव में। और जहां वो गोबर रखते हैं जाके, आप देखेंगे वो जगह साफ नहीं होती। तो जो अगर गांव में सफाई नहीं है वो उस गोबर के कारण, अब इसका कोई इलाज है, उसकी सफाई कर सकते हैं, कैसे साफ कर सकते हैं। मैं गया पंजाब में, एक जवंदी टकसाल है सरदारों की, वो सेमिनरी होती है, जैसे उसमें वो अपना गुरु ग्रंथ साहब वगैरह पढ़ाते हैं। तो वहां हम गए तो उन्होंने मुझे दिखाया कि किस तरह उन्होंने सारे जानवरों का जो गोबर है, चारे गाय भैंस का जो गोबर है, उसको जहां रखते हैं उस जगह को साफ कैसे रखते हैं। और उसको उठाने में जैसे अगर हाथ लगा के लेके जाते हैं, अब लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता उनको उसमें थोड़ा लगेगा कि मैं क्यों करूं, फिर वो कहेंगे मेरा भाई क्यों नहीं करता, मैं क्यों करूं। वो भी ठीक प्रश्न है, भाई क्यों नहीं करता। पर ये जो काम करने के जो ढंग हैं और जो सफाई है, ये एक प्रॉब्लम है हमारे गांव की बड़ी, सफाई। उसकी तरफ हम कुछ कर सकते हैं अगर हम चाहें। इसके बाद मैं ये कहूँगा कि हमारी शिक्षा चार मूल चीजों से टूटी हुई है, 4 मूल चीजों से। एक मैंने बता ही दिया, समाज से टूटने का क्या मतलब है। समाज से टूटने का मतलब है, कई मतलब हैं। जो भाषा लोग बोलते हैं वो भाषा हम यहाँ नहीं बोलते, भाषा हम नहीं बोलते यहाँ। मैं बहुत बढ़िया, मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ, इसलिए मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे कोई कन्विंस नहीं आपको करना कि मुझे अंग्रेजी आती है ना। जेडीयू में प्रोफेसर हूँ अंग्रेजी का, पर मेरी अंग्रेजी यहाँ से 5 किलोमीटर बाहर, उस अंग्रेजी में मैं किसी से बात नहीं कर सकता। तो ये जो विश्वविद्यालय की जो भाषा है, माध्यम, वो भाषा समाज की भाषा नहीं है। दूसरा, जो विश्वविद्यालय की शब्दावली है, शब्दावली, भाषा नहीं, शब्दावली जैसे हम आप कहते हैं, देखो भाई आपको ना
पूरा competitive होके, you know, you have to succeed and you have to do well, you have to go up in life. जिंदगी में आपको ऊपर उठना है, ये आपको कहा जाता है ना, और आपको दूसरों से आगे निकलना है, मेहनत करके क्या करना है। आपको कोई नहीं कहता कि आपको मेहनत करके अच्छा इंसान बनना है, ये भूल गया। और वो बेचारा अरिस्टोटल 2300 साल पहले मर गया। उसने अपनी किताब में लिखा, द गोल ऑफ एजुकेशन इज टू प्रोड्यूस men and women of virtue, virtuous people. Education, शिक्षा का ध्येय होना चाहिए to produce virtuous people. What our education is doing, and our education is not our education. ये भी मान लीजिए, हमारी शिक्षा, जो शिक्षा है, जो हमारी ये शिक्षा है, पद्धति, ये हमारी नहीं है, ये भारतीय शिक्षा पद्धति नहीं है, ये विदेशी है, ये पाश्चात्य है। यू नो, लॉर्ड मैकॉले ने 1812 में अपने पिताजी को कलकत्ते से चिट्ठी लिखी। मैं 35 की बात नहीं कर रहा, उसके वो जो उसने मिनट्स बनाए थे। 1812 में एज ए यंग मैन वो कलकत्ते में था, तो उसने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी, हमारे स्कूल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जो भी हिंदू बच्चा यहाँ पढ़ता है उसका अपनी धर्म और संस्कृति के लिए कोई सम्मान नहीं रहता है। जो पढ़ता है वो अपने धर्म और संस्कृति की इज्जत बंद कर देता है। और फिर लिखता है मच बेटर देन प्रोसेलाइजेशन, ये एजुकेशन धर्म परिवर्तन से ज्यादा अच्छी है। धर्म परिवर्तन क्या करेंगे, धर्म तो परिवर्तन हो गया। उस शिक्षा को, उस शिक्षा पद्धति को हम चला रहे हैं, ढो रहे हैं, चला नहीं रहे, ढो रहे हैं, ढो लेते हैं, वो चल रही है। बहुत लोग बोलते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म, कई कमीशन बने, कोठारी कमीशन, फलाना कमीशन, ये कमीशन, वो साइमन कमीशन क्या आ गया इंडिया में सर, हमें आदत पड़ गई कमीशन बनाने। नॉलेज कमीशन, नॉलेज के लिए भी कमीशन बना दिया, जबकि अगर चाइना नॉलेज की साइट खोले तो वो कमीशन नहीं बनाता, उनका है चाइना नॉलेज, जापान नॉलेज, हमारा इंडियन नॉलेज कमीशन, क्योंकि वो साइमन कमीशन, लाठियां पड़ी थी ना, डंडे, वो याद रह गया कि भी कमीशन भी होता है कुछ, तो एनीवे, पर शिक्षा में सुधार नहीं हुआ, शिक्षा में कोई सुधार नहीं, शिक्षा वैसी की, बल्कि आज आजादी, हम पंजाबी हैं, हम आजादी नहीं कहते, हम कहते हैं विभाजन। पार्टीशन से पहले फिर भी हमारी शिक्षा में हमारे अपने ज्ञान का कुछ सम्मान था। संस्कृत की शिक्षा बहुत अच्छी थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी प्रीमियर सेंटर थी संस्कृत की। पर ये आजादी के बाद मानसिक गुलामी इतनी बढ़ गई है कि अब हम अपना ज्ञान को कोई जगह ही नहीं देते इस देश की शिक्षा में, तो शिक्षा वैसी चल रही है। तो ये 4 प्रकार से टूटी हुई है। समाज की समस्याएं हम यूनिवर्सिटी के किसी क्लासरूम में उनकी चर्चा नहीं करते। दूसरा, हमारी भाषा अलग, हमारी शब्दावली सफलता की, हमारी शब्दावली दूसरों से आगे निकलने की। अब दूसरों से आगे निकलना, अब उसमें तो जूलिया बेन हर की तरह दूसरे के रथ के पहिए में आप छुरी भी लगाओगे ना आगे निकलने के लिए साम दाम दंड भेद सब सीखोगे, तभी तो आगे निकलोगे जाके। हम ये सिखाते हैं, ये हमारी शब्दावली है कि शिक्षा का मतलब है जिंदगी में ऊपर उठना, अपवर्ड मोबिलिटी। शिक्षा का मतलब है सक्सेस। बहुत साल पहले मैंने अपनी बेटी को 10वीं क्लास के बाद, जब उसने कहा कि पापा मैथमेटिक्स में टेंशन होती है, मैथमेटिक्स में हमें छोड़ दो, तो फिर साइंस भी छोड़नी पड़ेगी, हमें छोड़ दो, तो फिर क्या करूँ, जो मन करता है। मम्मी को मना लेंगे, मम्मी से डरती थी, मम्मी से सब डरते हैं, मम्मी से मना लेंगे। तो बोली कि मैंने कहा अगर तुम साइंस में 90% भी ले लोगी, 95% भी ले लोगी,
मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हें डॉक्टर बना दूंगा या इंजीनियर बना दूंगा। और सुबह एक वाक्य उसको बोला जो आजकल वो अपनी बेटी को बोलती है कि बेटा, जिंदगी में परस्यू हैप्पीनेस नॉट सक्सेस। जिंदगी में आपको हैप्पीनेस ढूंढनी चाहिए, सक्सेस नहीं। सक्सेस से हैप्पीनेस नहीं मिलती। और एक लाइन आपको प्लेटो की, ये प्लेटो और एरिस्टोटल यूनान के थे। यूनान और भारत के चिंतन में ज्यादा भेद नहीं है। वो जो उस वक्त जो ज्ञान था वो यूनान, भारत और चीन, इन तीनों जगहों पे था। प्लेटो एक कर्टिलस डायलॉग में कहता है, गुडनेस ब्रिंग्स वेल्थ, वेल्थ डज नॉट ब्रिंग गुडनेस। गुडनेस ब्रिंग्स वेल्थ, वेल्थ डज नॉट ब्रिंग गुडनेस। और हमारी सारी शिक्षा, हमारी सोशल थिंकिंग, हमारी लेजिस्लेटिव प्लानिंग, एग्जीक्यूटिव प्लानिंग, इट इज ऑल फॉर इंक्रीजिंग वेल्थ। वेल्थ एंड वेल्थ एट द कॉस्ट ऑफ वन, ह्यूमन गुडनेस। सेकेंडली, वेल्थ एट द कॉस्ट ऑफ नेचर, नेचर का डैमेज एंड डेग्रेडेशन। एंड वेल्थ एट द कॉस्ट ऑफ सोशल इम्बैलेंस। जितना पैसा ज्यादा आप इकट्ठा करते हैं समाज में, उतना ही लोगों में इनइक्वालिटी, अमीर गरीब का भेद, उसकी पोशाक का भेद, उसकी भाषा का भेद, खाने पीने का भेद, वो बढ़ जाता है। ये सब बढ़ जाता है। तो गोल्डस्मिथ ने 1770 में अंग्रेजी में 4 लाइनें लिखी थी, बड़ी सुंदर। इल फेयर्स द लैंड, इल फेयर्स द लैंड and ill fares the land and to hastening evils a prey। वो देश का दुर्भाग्य है और उसमें नए नए विकार आएंगे। to ill fares the land and to hastening is a prey where wealth accumulates, जहाँ धन तो इकट्ठा होता है but men decay, but human beings decay कर जाते हैं। तो उस देश का कोई भविष्य नहीं होता जिसमें ये स्थिति अल्टीमेटली, जो ग्रेट सिविलाइजेशन, हमारी ग्रेट सिविलाइजेशन रही है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थी, अब नहीं है। हमारी सिविलाइजेशन वो सारी बिल्ड होती हैं अराउंड गुड मैन, गुड एंड ग्रेट थिंकर्स, नॉट अबाउट वेल्थ। कोई ये जो पैसा कमाया व्यापारियों ने या जैसी सिविलाइजेशंस ने, कोई इनिशियल्स वगैरह, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ग्रीक्स जब तक फिलोसोफर थे, सिविलाइजेशन बढ़िया थी। जैसे ही वो सेलर और ट्रेडर बन गए, ग्रीक सिविलाइजेशन फिनिश्ड। तो इसलिए वेल्थ का सक्सेस का गोल रखना, ये जो शिक्षा का जो संबंध है, ये टूटा। तीसरी बात भाषा, शब्दावली, और तीसरा देश की जो परंपरा है, देश की परंपरा हमारी जो, अब परंपरा को अंग्रेजी में ट्रेडिशन कहते हैं, और ट्रेडिशन शब्द को खूब गाली दी गई इस देश में। किसी आदमी को कब कहना हो कि ये गलत है, ये ट्रेडिशनल है, मतलब मॉडर्न नहीं है। अच्छा, मॉडर्न एक बहुत बड़ी क्वालिटी बन गई। कोई कह दे भाई आई एम सॉरी, नो आई एम ए मॉडर्न पर्सन, अरे वाह बड़ी सी बात है, इससे लड़की की शादी कर देंगे, ये मॉडर्न है, तीसरे दिन निकाल देगा घर से। मॉडर्न की वर्चू, मॉडर्न कल्चर, आज की जो कल्चर है इसको मॉडर्न कल्चर कहते हैं, और ये माना जाता है कि ये मॉडर्न कल्चर जो है ये सुपीरियर कल्चर है। सुपीरियर नहीं है, ये अलग कल्चर है। हम नॉन मॉडर्न नहीं है। हमारे गांव में जो लोग रहते हैं वो नॉन मॉडर्न नहीं है, वो प्री मॉडर्न भी नहीं है, वो डिफरेंट है। कोई दूसरी कल्चर, दूसरी संस्कृति, दूसरी सभ्यता के, और उस संस्कृति, बच्चों आप उस संस्कृति सभ्यता के हो जो 5000 साल से जीवंत है। 5000 साल से जब हम उसकी गलतियां निकालते हैं, जब हम उसको गाली देते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि जो समाज 5000 साल चला उसमें कुछ तो अच्छाई होगी। बिना अच्छाई के 5000 साल चल गया। अगर बुराइयां ही बुराइयां थी, सोशल साइंस की किताबें पढ़िए, सीबीएसई की किताबें पढ़िए, सब पढ़ाया जो जाता है कि इस देश में गलत क्या है, गलत ये गलत वो गलत, पर अगर ये सब गलत था तो रोम की तरह
यूनान की तरह हम भी मिट गए होते, नहीं मिटे ना, वी हैव सर्वाइव। चर्चा थोड़ी दूर निकल गई अपने विषय से, पर दूर भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको समाज के लिए विश्वविद्यालय को कुछ करना है तो सिर्फ ये नहीं कि आपने एक हल्का पहिया बना दिया या खाद नहीं बना दी तभी कुछ होता है। सोच और चिंतन, लोगों का आत्मविश्वास। अब आजकल गांव वालों में हीन भावना भरी जाती है। के बाद यूनिवर्सिटी के थिंक टैंक तो है ही, मेरे ख्याल से पूरे ब्रह्मांड के थिंक टैंक कहे जा सकते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा लिखा और अनपढ़ में बड़ी संजीदगी से जो भेद बताया, और सामाजिक भागीदारी, और हरियाणा खासकर अपने आप में एक देश, और हरियाणा के सारे जिले अपने आप में एक देश, वो भी बड़ा अच्छा। संयम और आनंद की इन्होंने बात की, जो पढ़ाई में जो एक मूल चीज होनी चाहिए। तो मैं तो बहुत छोटा हूँ कि भाषण में कुछ टिप्पणी करूँ, बट इतना जरूर समझा कि अभी अनपढ़ हैं, पढ़ना है, उतना जरूर समझ आया मुझे। प्रोफेसर कपूर को हम पोस्ट लंच सेशन में दोबारा सुनेंगे, सो प्लीज जाइएगा मत कहीं कि लंच के बाद, इनको दोबारा सुनने का मौका मिलेगा लंच के बाद। थैंक यू सो मच। Who is advisor to the Planning Commission of India amidst us. Before I invite Dr. Agarwal for an overview of the symposium's theme, it is my great pleasure to introduce him. Shri Pawan Agarwal, a senior IAS officer, is presently working as advisor higher education in Planning Commission of India. He was the director in the Ministry of HRD, handling the higher education and technical education, and later worked as financial advisor and coordinator of new initiatives in the University Grants Commission of India. During the year 2005 and 6, he was a Fulbright New Century Scholar on Higher Education from India. He was visiting scholar at the Harvard University and at the India-China America Institute at Emory University, Atlanta, United States of America. Dr. Agarwal has written a book titled Indian Higher Education Envisioning the Futures, published by Sage Publishing House, New Delhi. Now may I very kindly request Honorable Shri Pawan Agarwal ji to deliver his speech. के बाद में उनका मेरे ख्याल से 2 पॉइंट में उन्होंने इतना कुछ बोल डाला, मेरा कुछ बोलने का ठहर जाता है। मेरी इच्छा कर रही है कि मैं अपना समय को लेकर 2 पॉइंट और सुन ले जाऊँ उनके। बिकॉज आप तो यहाँ पर हैं, उनके 16 के 16 पॉइंट आप सुन लेंगे तो मैं तो चला जाऊँगा आज शाम को, तो मेरी बड़ी इच्छा है आपके 16 के 16 पॉइंट। मैं भी एक वाक्य से शुरू करता हूँ कि प्रोफेसर कपूर, कल जब मैं यहाँ आ रहा था तो इसी तरह का एक सेमिनार हो रहा था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, और वहाँ एक जनरल खुराना है, आप शायद जानते हो, और इंडिया और चेयरमैन, वो उसको प्रिसाइड कर रहे थे। तो मैंने उनके कान में बोला, आपके कलीग थे प्रोफेसर मनोज पंत, हाँ, उन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया और उनके भी 16 पॉइंट थे। तो उनका जो भाषण थोड़ा चलते जा रहा था, तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि अग्रवाल साहब को, मैंने बोल दिया था कि मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, सोनीपत जाना है। अच्छा, उनको पता नहीं कुछ कंफ्यूजन हुआ, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इनको एक फ्लाइट लेकर स्वीडन जाना है। और सब लोग बड़े सतर्क हो गए कि ये स्वीडन जाने वाला, इनको भाई ये तो बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है, इनको पहल दिया जाए। तो मनोज पंत जी ने भी मेरे अब्रॉड फ्लाइट ना मिस हो जाए, उन्होंने भी अपना भाषण छोटा किया और मुझे जल्दी से मौका मिला भाषण देने का। तो मैंने शुरू में ही ये क्लैरिफाई कर दिया कि मैं स्वीडन नहीं जा रहा हूँ, मैं सोनीपत जा रहा हूँ। और मेरे साथ में, मैं सरकारी गाड़ी में नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ में प्रोफेसर टंडन हैं, उनके साथ में हम एक गाड़ी को पूल करके जा रहे हैं जिससे कि तेल की बचत हो। तो उनको बड़ा अजीब सा लगा कि ये बड़ा अजीब किस्म का IAS ऑफिसर है, लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं जा रहा है और एक पूल कार में जा रहा है। तो इस तरह की जो हम लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, जो समाज में हम
लोगों का एक नज़रिया है देखने का, उसके बारे में प्रोफेसर कपूर ने आपको बताया। और जो थीम आज का है फॉस्टरिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो थीम के बारे में आपकी किसी साहिबा ने लिखकर आपको भिजवाया था कि आजकल जो हमारा शिक्षा की प्रणाली है सामाजिक जीवन से बहुत दूर होती जा रही है। और ये कपिल कपूर जी ने ठीक ही बोला कि जो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसको हमने एक और महत्वपूर्ण अंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी इंस्पिरेशन काफ़ी हद तक आपकी यूनिवर्सिटी से ही मिली है, आप लोगों से ही मिली है। मैं अपने ओवरव्यू में कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हुए ये कहना चाहूँगा कि जो कपिल कपूर जी ने अपनी भाषा में, हम सबकी भाषा में आपको इस सुंदर तरीके से बताया, यही लगभग यही चर्चा देश विदेश में आजकल हो रही है। आई थिंक द breakdown of the education system is right up on the agenda throughout the world in education. आमिर खान जी को आप कितने लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं। अच्छा, और उनका एक सत्यमेव जयते एक बड़ा बढ़िया धारावाहिक आया था, और उसके बारे में कुछ दिन पहले लास्ट मंथ टाइम मैगजीन ने कुछ एक उनका कवर पेज पर फोटोग्राफ था आमिर खान जी का, which is a very prestigious magazine. It means कि आमिर खान जी जो कर रहे हैं उसका देश में ही नहीं विदेश में भी चर्चा हो रही है। तो मैं टाइम मैगजीन का जब मैं वो आर्टिकल पढ़ रहा था तो आमिर खान जी से सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एंटरटेनमेंट। उनका जवाब था, it is to bring grace to society, to affect the way people think, and to make the social fabric stronger. जरा इसका हिंदी में रूपांतर करेंगे आप? Let me repeat. It is to bring grace to society, to affect the way people think, and to make social fabric stronger. संस्कृत करना लोगों और उनके विचारों पर प्रभाव डालना और उनका राष्ट्र क्या and make social fabric stronger. समाज के तंतु जो है उनको बहुत बूझना ताकि समाज में बिखराव ना आए। अगर मैं सोच रहा था कि अगर ये वर्ड एंटरटेनर रिप्लेस कर दें एडुकेटर से और यूनिवर्सिटी से, कितना अच्छा है। मैं डॉक्टर टंडन साहब से बोल रहा था कि ये रोल तो एडुकेटर का होना चाहिए, एंटरटेनर तो आमिर खान एक तरह से एक्सेप्शन है जो ये करते हैं, बाकी तो गोविंदा हैं, सलमान खान जी हैं वो तो कुछ और ही करते हैं वो तो एंटरटेनमेंट ही करते हैं। आई थिंक around the world that what is the role of education that is being revisited. So we are not unique. What you are doing today and what is being done under the leadership of Professor Pankaj Mittal is something unique. And it has a transformative potential for education, for higher education. अभी कुछ दिन पहले फिक्की ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया, उसमें उन्होंने ऐसे जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया और उसके बारे में चर्चा करने की कोशिश की। और ये करने के लिए उन्होंने देश विदेश में खोज की कि इस इनिशिएटिव को कौन लीड कर सकता है, और पूरा ग्लोबल सर्च के बाद में प्रोफेसर जेरेमी रिफ्किन को उन्होंने आइडेंटिफाई किया जो इस उनका जो ये इनिशिएटिव है उसकी लीडरशिप दे रहे हैं। तो जेरेमी रिफ्किन इज a futurologist. He has written about future of the world and future of society. And one of the strengths in that, they have identified 5 trends. And one of the strengths in that is the classroom makeover, collaborative education. मैं अब थोड़ा सा आपको जो रिफ्किन साहब ने क्लासरूम मेकओवर के अपने लेक्चर में और जो उनका पेपर है उसमें जो लिखा है
उसके एक्सेप्ट आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ, इंग्लिश में होंगे और अगर जरूरत हुई तो कपिल कपूर साहब वो हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे इसका। तो व्हाट आर द न्यू स्किल्स दैट आर नीडेड इन सोसाइटी टुडे, you know? So if we, what is education? That itself is getting revisited. You know, it is our perception of reality and our conception of nature. Assumptions about human nature and meaning of the journey is getting transformed. I think जो ये पुरानी बातें जो इन्होंने कही, जो अरिस्टोटल, प्लेटो साहब का उनके जो कोटेशंस को उन्होंने यहाँ पर दोहराया, वो फिर से रिविजिट कर रही है सोसाइटी। और हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उसमें कहाँ तक खरा पहुँच रहा है और बहुत हद तक उसमें खामियां हैं। Revisiting human nature, you know, how we feel that, I think इन्होंने बड़े अच्छे से समझाया that humans are not rational, detached, acquisitive, aggressive and narcissistic। ये जो हम कहते competitive nature, that is not human nature, that is being taught by our education system। Human biologically is predisposed to be emphatic, affectionate, highly social, cooperative, interdependent। Empathy is the social glue that allows